suppose there is a virus, right, TMV, टोबैको मोजाइक वायरस. इस वायरस के अंदर सपोज एक पॉलीपेप्टाइड है and in that polypeptide somewhere histidine is present, right. टोबैको मोजाइक वायरस में हम लोग को पता है कि एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट होता है as the genetic material of that virus. So in that single stranded RNA, histidine, somewhere it is histidine is present. So if histidine is present in the polypeptide of the TMV virus, so if we give any chemical mutagen, then what will be its effect? Now let us say that we give some chemical mutagen to this polypeptide, right, and specifically in place where histidine is present. Now when we give that mutagen, now what will be the change of the resulting polypeptide? That means in the resulting polypeptide, whether histidine will be present or some other amino acid in place of histidine will come. So we will see that whether histidine is present or it is altered to some other amino acids, right. So let us first understand. First of all, let us see that what is the codon for histidine. So the codon for histidine is CAU or CAC, right. So these are the two codons that code for the amino acid histidine. So now let us say we will see in both the cases that what happens when we provide some type of chemical mutagen, and that chemical mutagen may be nitrous acid, right. It is a chemical mutagen, nitrous acid, and this nitrous acid changes the base of the segment, the polypeptide segment, right. So when we give nitrous acid to this codon, then what happens? This cytosine will convert into uracil, right. This is the property, of the nitrous acid, that when we give nitrous acid to this codon, then the cytosine will get changed into uracil, and let us say only cytosine is changed. So this will be the resulting codon, right. Another change might occur. Let us keep other things constant, see as it is. Now adenine, when we give nitrous acid to adenine, it changes into hypoxanthine. So now this time we change the second base, that is adenine will change into hypoxanthine, and the rest is same, right. Likewise we can change both the bases simultaneously. So if we change both the bases simultaneously, that means cytosine will change into uracil, adenine will change into hypoxanthine, and uracil will remain as it is. So this may be the resulting codon when we give nitrous acid. Okay, so nitrous acid, whenever we provide nitrous acid to a polypeptide, so adenine always changes into hypoxanthine and cytosine changes into uracil. So keeping the same concept in mind, we have developed three possibilities of the change in this codon. First of all, we change the first base, keeping everything constant. Secondly, we change the second base, that is adenine, keeping other things constant. And lastly, we change both the bases, keeping only uracil as constant, right, because uracil has no effect. Okay, likewise we see on the second codon for histidine. In this case also same thing will happen, that is cytosine will change into uracil, keeping everything constant. In the second possibility, keeping everything constant, adenine will change into hypoxanthine. Okay, and in the next possibility, both the changes will
occur. So cytosine will change into uracil, adenine will change into hypoxanthine, and cytosine this time again it will change into okay. So हम लोग देख चुके हैं कि ये सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं कोडोन के, जब अंदर जब नाइट्रस एसिड के साथ हम लोग रिएक्ट कराते हैं। नाइट्रस एसिड को जब हम लोग डालते हैं तो पॉलीपेप्टाइड के अंदर हिस्टिडीन का जो कोडोन है, हिस्टिडीन का दो कोडोन हो सकता है, CAU एंड CAC। CAU के अंदर जब हम लोग ऑल्टरेशन करेंगे तो एक एक बेस को हम लोग ऑल्टर करके देख लिए हैं क्या क्या रिजल्ट आ रहा है। लाइकवाइज जब CAC में हम लोग ऑल्टरेशन देखते हैं तो फिर हम लोग एक एक बेस को ऑल्टर करके देख लिए हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज अराइज कर सकते हैं, राइट। तो अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA तैयार हो चुका है, ऑल्टर्ड RNA तैयार हो चुका है, राइट। अब इसका रेप्लिकेशन होना है। रेप्लिकेशन जो होगा, TMV का रेप्लिकेशन उसी तरीके से होगा जिस तरीके से एक नॉर्मल DNA के अंदर रेप्लिकेशन हम लोग देखते हैं, राइट। एक स्ट्रैंड से दो स्ट्रैंड बन जाना, तो यहाँ भी हम लोग दो स्ट्रैंड बनाते हैं, यानी कि रेप्लिकेशन कराते हैं। तो चलिए U के साथ आ जाएगा A, यूरासिल के साथ एडिनाइन जाएगा ना, एडिनाइन A के साथ आ जाएगा U के साथ A, लाइकवाइज C के साथ G। नाउ H इज हाइपोजेंथिन। हाइपोजेंथिन जब भी आएगा तो हाइपोजेंथिन अपने साथ साइटोसिन को पेयर करेगा, इस बात को सिर्फ दिमाग में रखना है। तो हाइपोजेंथिन के साथ साइटोसिन हम लोग डाल देते हैं रेप्लिकेशन के दौरान। फिर U के साथ A, अगेन हियर U के साथ A, हाइपोजेंथिन के साथ साइटोसिन, एंड U के साथ A। लाइकवाइज हम लोग इस वाले पॉसिबिलिटीज में देखते हैं कि रेप्लिकेशन के बाद कैसा डबल स्ट्रैंडेड बनता है। U के साथ A के साथ U एंड C के साथ G। यहाँ भी C के साथ G आ गया, हाइपोजेंथिन के साथ आएगा साइटोसिन एंड C के साथ G, सेम। ओके, सो ये बन चुका है डबल स्ट्रैंडेड। अब देखिए एक डबल स्ट्रैंडेड पॉलीपेप्टाइड है, डबल स्ट्रैंडेड पॉलीपेप्टाइड है। अब हम लोग इसको सिंगल स्ट्रैंडेड में ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री रूल सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करते हैं ना। इसका जब हम लोग सिंगल स्ट्रैंडेड बनाएंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बैठेगा, A का कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा U के साथ आ जाएगा A एंड U। इस वाले डबल स्ट्रैंडेड का जब हम लोग सिंगल बनाते हैं तो G के साथ C एंड U। लाइकवाइज इसके साथ जब हम लोग बनाते हैं तो A के साथ U, C के साथ G एंड A के साथ U। सिमिलरली हम लोग अदर पॉसिबिलिटी जो है उसमें भी देखते हैं, A U A एंड G C एंड C। A के साथ U, C के साथ G एंड G के साथ C। सो ये हमारा अब सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीपेप्टाइड बन चुका है ना। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड, ये जो कोडोन है, ये अब कोड करेगा एमिनो एसिड के लिए। तो हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड जो RNA है वो तैयार हो चुका है। मतलब हम लोग ऑल्टरेशन किए और ऑल्टरेशन करने के बाद जो हमारा ये कोडोन था वो इन तीनों कोडोन्स में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर हमारा जो ये कोडोन था हिस्टिडीन के लिए, ये इन तीनों पॉसिबिलिटीज में चेंज हो सकता है। मतलब हिस्टिडीन का कोडोन इन कोडोन्स में चेंज हो सकता है, राइट। तो ये जो कोडोन है पहला वाला UAU, ये कोडोन जाता है टायरोसिन के लिए, राइट। UAU या फिर UAC दोनों ही जाएंगे टायरोसिन के लिए। लाइकवाइज जो CGU है या फिर CGC है दोनों ही जाएंगे, CGU है या फिर CGC है दोनों ही जाएंगे आर्जिनिन के लिए। ये भी जाएगा आर्जिनिन के लिए, सिस्टीन के लिए। तो ये हमारा एमिनो एसिड तैयार है। तो देखिए किस तरीके से जो पॉलीपेप्टाइड था, जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA था टोबैको मोजाइक वायरस का, तो उस RNA के अंदर उस पॉलीपेप्टाइड में हम क्या किए हैं, एक केमिकल म्यूटेशन को डाले हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रस एसिड, एंड व्हाट डज दिस नाइट्रस एसिड डू? दिस नाइट्रस एसिड causes some alteration. What type of alteration? दो बातें दिमाग में रखना है, राइट। दो बातें दिमाग में रखना है। सबसे पहला कि साइटोसिन पे इसका इफेक्ट होगा, और साइटोसिन पे इफेक्ट होगा तो साइटोसिन बना देगा यूरासिल बन जाएगा, राइट। एडिनाइन पे होगा तो एडिनाइन जो है वो हाइपोजेंथिन बन जाएगा।
एक और याद रखना है कि जो हाइपोक्सांथिन है वो साइटोसिन के साथ पेयरिंग करेगा। बस ये 3 बातें दिमाग में रखनी है और ये पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो अब इससे कंक्लूजन हम लोग क्या डिराइव कर सकते हैं? वी कैन कंक्लूड दैट इन दिस पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग हिस्टिडीन, in place of histidine maybe tyrosine, arginine or cysteine may be present, right? हिस्टिडीन जहाँ पे है वहाँ पे ऑल्टरेशन, हिस्टिडीन का कोडोन के अंदर ऑल्टरेशन हो गया, जिसकी वजह से टायरोसिन बन सकता है, आर्जिनिन बन सकता है या फिर सिस्टीन बन सकता है। तो इस तरीके से जो पॉलीपेप्टाइड था, तो वहाँ पे जहाँ जहाँ भी हिस्टिडीन था वहाँ पे हिस्टिडीन के बदले ये इनमें से कोई भी अमीनो एसिड आ सकते हैं, और इस तरीके से जो पूरा पॉलीपेप्टाइड है उसके अंदर ऑल्टरेशन आ चुका है। सो दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ म्यूटेशन कॉज्ड बाय नाइट्रस एसिड। एंड इस टाइप के क्वेश्चन नेट के एग्जाम और ये सब में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल और एक एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है कि अगर हम लोग नाइट्रस एसिड को एक वायरस का आरएनए जेनेटिक मटेरियल में डालेंगे तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है, क्या उसका अमीनो एसिड चेंज होगा या फिर अमीनो एसिड सेम रहेगा। तो इस केस में हम लोग देख रहे हैं अमीनो एसिड चेंज होगा। कैसे चेंज हो सकता है? तो हिस्टिडीन के बदले ये तीनों अमीनो एसिड आ सकते हैं, राइट? ओके।